Saran Jamisiri. Greeting you all in the name of Jesus. We take the reading of Ephesians 2. ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ ਅਫਸੀਆਂ ਨੂੰ Chapter 2 or verse 11 to 22. ਉਹਦੀ 2 ਬਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਤੱਕ ਪੜਾਂਗੇ. Therefore, remember that once Gentiles in the flesh who are called uncircumcision by what is called the circumcision made in the flesh by hands. ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਫਸੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਦੀ 11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਤੱਕ. ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਚੇਤੇ ਕਰੋ ਭਈ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੌ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਸੁੰਨਤੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਸੌ. That at the time you were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel and strangers from the covenants of promise, having no hope and without God in the world. ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਅੱਡ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਨਿਆਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਸਾਹੀਣ ਅਤੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸੌ. But now in Christ Jesus, you who once were far off have been brought near by the blood of Christ. ਪਰ ਹੁਣ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਦੂਰ ਸੌ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੇੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋ. For he himself is our peace, who has made both one and has broken down the middle wall of the separation. ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੀ ਜੁਦਾਈ ਦੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਢਾ ਦਿੱਤਾ. Having abolished in his flesh the enmity, that is, the law of commandments contained in ordinances, so as to create in himself one new man from the two, thus making peace. ਅਤੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਣੇ ਅਕਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਹਾਂ ਜੋ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਨਸਾਨ ਰਚ ਕੇ ਮੇਲ ਕਰਾਵੇ. And that he might reconcile them both to God in one body through the cross, thereby putting to death the enmity. ਅਤੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵੇ. And he came and preached peace to you who were afar off, and to those who were near. ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਸੌ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਸਨ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈ. For through him we both have access by the one Spirit to the Father. ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕੋ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਵੱਲ ਅਸਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਢੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. Now therefore you are no longer strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and members of the household of God. ਸੋ ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰੇ ਅਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਤਨੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਹੋ. Having been built on the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone. ਅਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਨੀਹਾਂ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਖੂੰਜੇ ਦਾ ਪੱਥਰ ਆਪ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਹੈ. In whom the whole building being fitted together grows into a holy temple in the Lord. ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਇੱਕ ਸੰਗ ਜੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈਕਲ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. In whom you also are being built together for a dwelling place of God in the Spirit. ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭਵਨ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਗ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋ. This is the word of God. May God bless his word. ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਔਰ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਰਕਤ ਹੋਵੇ. ਆਮੀਨ. कलाम को नाज़िल कर, कलाम को नाज़िल कर, अपनी कुदरत को जारी तो कर, अपनी कुदरत को जारी तो कर. मुझसे बोल बेदिलाही आज तू खोल, मुझसे
कलाम को नाजिल कर, अपनी कुदरत को जारी तू कर, अपनी कुदरत को जारी तू कर। मुझसे बोल, मुझसे बोल, बेदिलाही आज तू बोल। मुझसे बोल, मुझसे बोल, बेदिलाही आज तू बोल। कलाम को नाजिल कर, कलाम को नाजिल कर, अपनी कुदरत को जारी तू कर। छांट मुझे, तराश मुझे, अपने खून से पाक कर। छांट मुझे, तराश मुझे, अपने खून से पाक कर, पाक कर, पाक कर, अपने खून से पाक कर, पाक कर, पाक कर, अपने खून से पाक कर। मुझसे बोल, मुझसे बोल, बेदिलाही आज तू बोल। मुझसे बोल, मुझसे बोल, बेदिलाही आज तू बोल। कलाम को नाजिल कर, कलाम को नाजिल कर, अपनी कुदरत को जारी तू कर, अपनी कुदरत को जारी तू कर। मिट्टी के बर्तन को खाली करूं, अपने दिल में बसा लूं कलाम तेरा। मिट्टी के बर्तन को खाली करूं, अपने दिल में बसा लूं कलाम तेरा। साफ कर, साफ कर, लहू से अपने तू साफ कर, साफ कर, साफ कर, लहू से अपने तू साफ कर। मुझसे बोल, मुझसे बोल, बेदिलाही आज तू बोल। मुझसे बोल, मुझसे बोल,
को जारी तू कर। मुझसे बोल तेरी राही आज तू खोल। मुझसे बोल तेरी राही आज तू खोल। कलाम को नाज़िल कर, कलाम को नाज़िल कर। अपनी कुदरत को जारी तू कर, अपनी कुदरत को जारी तू कर। हालेलुया। हालेलुया। यीशु राजा तू दिल में समा जा, मैं सना तेरी गाऊं, मैं सना तेरी गाऊं, मैं सना तेरी गाऊं, मैं सना तेरी गाऊं, मैं सना तेरी गाऊं। यीशु राजा तू दिल में समा जा, मैं सना तेरी गाऊं, मैं सना तेरी गाऊं, मैं सना तेरी गाऊं, मैं सना तेरी गाऊं, मैं सना तेरी गाऊं। यीशु राजा तू दिल में समा जा, मैं सना तेरी गाऊं, मैं सना तेरी गाऊं। सब बोलेंगे मैं सना तेरी गाऊं, मैं सना तेरी गाऊं, मैं सना तेरी गाऊं। आँखों में बस तू ही तू है, आँखों में बस तू ही तू है, सोचों में बस तू ही तू है, सोचों में बस तू ही तू है, आँखों में बस तू ही तू है, आँखों में बस तू ही तू है, सोचों में बस तू ही तू है, सोचों में बस तू ही तू है। मुखड़ा अपना तू मुझको दिखा जा, मैं सना तेरी गाऊं, मैं सना तेरी गाऊं। मुखड़ा अपना तू मुझको दिखा जा, मैं सना तेरी गाऊं, मैं सना तेरी गाऊं, मैं सना तेरी गाऊं, मैं सना तेरी गाऊं, मैं सना तेरी गाऊं। यीशु राजा तू दिल में समा जा, मैं सना तेरी गाऊं,
राजा खुद में समा जा, मैं सना तेरी गाऊं, 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 मैं सना तेरी गाऊं। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ गीत बोलांगे। तू मेरी सच्चाई को सुने यहोवा, जो दिल की दुहाई वो सुने यहोवा। तू मेरी सच्चाई को सुने यहोवा, जो दिल की दुहाई वो सुने यहोवा। तू मेरी सच्चाई को सुने यहोवा, जो दिल की दुहाई वो सुने यहोवा। तू मेरी सच्चाई को सुने यहोवा, जो दिल की दुहाई वो सुने यहोवा। मैं बेगर्द होठों से तुझको पुकारूं, तू सुने खुदा मैं तुझको पुकारूं। मैं बेगर्द होठों से तुझको पुकारूं, तू सुने खुदा मैं तुझको पुकारूं। मेरा फैसला तेरे दर से हो सादिर, की सच को परखने के कादे। मेरा फैसला तेरे दर से हो सादिर, की सच को परखने के कादे। मेरी सच्चाई को सुने यहोवा, जो दिल की दुहाई वो सुने यहोवा। यहोवा तुझी से दुआ मैंने की है, दुआओं का मेरी जवाब तू ही है। यहोवा तुझी से दुआ मैंने की है, दुआओं का मेरी जवाब तू ही है। मेरी तरफ कान अपना झुका दे, मिन्नत तू सुन जाले। तू मेरी तरफ कान अपना झुका दे, सो मिन्नत तू सुन जाले। मेरी सच्चाई को सुने यहोवा, जो दिल की दुहाई वो सुने यहोवा। जो करते तवक्कल है तुझ पे खुदाया, तेरे दाने हाथ ने उनको बचाया। जो करते तवक्कल है तुझ पे खुदाया, तेरे दाने हाथ ने उनको बचाया। सभी दुश्मनों से बचाता रहेगा, वो शफ़क़त जब तू दिखाता रहेगा। सभी दुश्मनों से बचाता रहेगा, जब तू दिखाता रहेगा। तू मेरी सच्चाई को सुन यहोवा,
सुने यहोवा, तू मेरी सच्चाई को सुने यहोवा, जो दिल की दुआई वो सुने यहोवा, जो करते तवक्कल है तुझ पे खुदाया, तेरे दाने हाथ ने उनको बचाया, जो करते तवक्कल है तुझ पे खुदाया, तेरे दाने हाथ ने उनको बचाया, जो करते तवक्कल है तुझ पे खुदाया, तेरे दाने हाथ ने उनको बचाया, सभी दुश्मनों से बचाता रहेगा, वो शफ़क़त जब तू दिखाता रहेगा, सभी दुश्मनों से बचाता रहेगा, वो शफ़क़त जब तू दिखाता रहेगा, तू मेरी सच्चाई को सुने यहोवा, जो दिल की दुआई वो सुने यहोवा, तू मेरी सच्चाई को सुने यहोवा, जो दिल की दुआई वो सुने यहोवा। हालेलुया। Thank you, brother, and Jai Masih ki everyone. Thank you, and I greet you all in the name of Jesus. आज का जो चर्च के में जो माहौल बना हुआ है So the atmosphere in the church today प्रे का, was of prayer. खुदा का रूह जो है वो एक दूसरे के साथ काम करता है। God's Spirit is working within all of us. जो आज का हमारा कलाम है वो भी दुआ पर है, Even today's message is about prayer. दुआ और उसका जवाब। Prayer and its answer. इसमें हम 3 चीज़ें सीखेंगे। Today we will learn 3 things. सबसे पहली दुआ, First of all, prayer, उसका इंतज़ार its wait, और उसका जवाब। and its answer. हम कब दुआ करते हैं, हमें कब उसका इंतज़ार करना है और कब हमें जवाब मिलेगा। When we should pray, when we should wait, and what we should do with the answer. आए हम खुदावंद के कलाम को खोलें, हबक्कूक उसका पहला बाब उसकी दूसरी आयत। So we'll now turn to the Word of God. We'll read Habakkuk Habakkuk. chapter 1, verse 2. चैप्टर 2 उसकी वर्स 1 है। चैप्टर 2 सॉरी। हबक्कूक जिसको इंग्लिश में कहते हैं, उसका दूसरा बाब चैप्टर 2 उसकी पहली आयत। दूसरा चैप्टर या मैं तेरी दीदार गाह पर खड़ा हूँ और बुर्ज पर चढ़कर इंतज़ार करूँगा, और वो मुझसे कहता है मैं अपनी फरियाद की बाबत क्या जवाब दूँ। So it says, I will climb my watchtower and wait to see what the Lord will tell me to say, and what answer he will give to my complaint. ये जो हबक्कूक है, Habakkuk, ये उस वक्त की बात करता है जब बनी इसराइल कौम असीरी में थे। he was talking about the time when the land of Israel was in असीरी को यानी कि जब वो खुदा वो उनको जब वो slavery. स्लेवर सॉरी, तो उस वक्त की ये बात, उस वक्त तो बहुत दुख में थे, तकलीफ में थे, At that time they were in much distress क्योंकि वो ऐसी जगह पर थे, आपको पता है कि जो स्लेव्स होते हैं because they were in a place where they were slaves, वहाँ पर बहुत किस्म का उन पर जुल्म किया जाता है। and there was a lot of hardships for them. और वो कहता है कि मैं खुदा की उस जगह पर खड़ा होऊंगा, And he said that I will stand where God will take me. और इधर एक लफ्ज़ उर्दू में यूज़ किया गया है, बुर्ज पर उसका इंतज़ार करूंगा। And on here it says, I will wait on the watchtower. एक टावर पे किस चीज़ का इंतज़ार करेगा, क्योंकि वो खुदा से दुआ करता था कि इस्राएल कौम को उस असीरी में से बाहर निकाले।
He was waiting for the Lord to take him out of slavery. और वो कहता है कि मैं फरियाद करूंगा और अपने जवाब का भी इंतजार करूंगा। He said, I will pray and I will wait for my answer. ये हबक्कूक जो है इसके नाम के मतलब है मिला हुआ। Hakuk means to be together. ये एक प्लांट का नाम है। It's the name of a plant. अगर हम उसको देखें तो वो इस किस्म का प्लांट है कि जैसे कोई दो लोग एक दूसरे को गले लगा रहे हैं, जैसे हम हग करते हैं किसी को। So when you see this plant, it looks like two people hugging. और हबक्कूक भी अपने नाम के मुताबिक ऐसा ही था। And Hakuk was also like this. हम यहाँ पर देखिए क्या होता है कि आज मुझे एक बात बताएं, आप सबके पास फ़ोन है, मोबाइल हैं, आईपैड्स हैं, फिर इसके अलावा कंप्यूटर्स हैं, व्हाटएवर, हर चीज़ पे आपने क्या लगाया हुआ है? So everyone has a mobile phone, computer, iPad, and what do you have on your devices? क्या लगाते हैं फ़ोन को खोलने से पहले? पासवर्ड। अगर आप अपने फ़ोन पे रॉन्ग पासवर्ड लगाएंगे क्या आपका फ़ोन खुलेगा? If you enter the wrong password, your phone won't open. क्या होगा आपके फ़ोन के साथ? हैंग हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा आपका फ़ोन, आप उस फ़ोन को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। इसी तरह जब आप दुआ करते हैं, अपनी दुआ में अपना रॉन्ग पासवर्ड लगाते हैं तो आपकी दुआएं रुक जाती हैं। So when you put your wrong password into your phone, you cannot access your phone. So when you pray with the wrong password, you will not receive your answer from the Lord. आज हम सीखेंगे हमारा पासवर्ड क्या है। Today we will learn what our password will be. हमारी दुआओं का पासवर्ड क्या है? What is the password for our prayers? हमारी दुआओं का पासवर्ड है हमारा खुदावन यीशु मसीह। The password to our prayers is our Lord Jesus Christ. जब हम गलत पासवर्ड यूज करते हैं, When we use the wrong password, हम गलत लोगों के पास जाते हैं, we go to the wrong people. तो क्या होता है, जो हमारी दुआएं हैं वो खुदावन तक नहीं पहुंचती बल्कि रुक जाती हैं। What happens is our prayers do not reach God and they stop there. हमें इस चीज को देखना है कि हम अपनी दुआ के लिए अपना राइट पासवर्ड इस्तेमाल करें ताकि वो उस आसमान को खोल दे जिस पासवर्ड से वो आसमान खुलता है। So we need to evaluate ourselves and see what is the right password that can be used to talk to God and receive our answer. हमारे आसमान के खुलने का पासवर्ड, हमारी दुआओं के जवाब का पासवर्ड सिर्फ हमारे खुदावन यीशु मसीह हैं। The answer to our passwords is only our Lord Jesus Christ. क्योंकि कलाम में लिखा है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मेरे बाप से मांगोगे, Because in the Bible it says, whatever you ask from me or my Father, वो तुम्हें मिलेगा। you shall receive it. वहाँ ये नहीं लिखा कि तुम पतरस के नाम से कुछ मांगोगे तुम्हें मिलेगा। It does not say if you ask in Peter's name, you will receive it. वहाँ ये नहीं लिखा कि तुम पालूस के पौल के नाम से कुछ मांगोगे तुम्हें मिलेगा। It doesn't say if you ask Paul, you shall receive it. वहाँ ये नहीं लिखा कि आप अलाइजा के नाम से कुछ मांगोगे तुम्हें मिलेगा। It doesn't say if you pray to Elijah, you'll get it from him. वहाँ लिखा है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे। किसने कहा था ये? खुदावन यीशु मसीह ने। It says, whatever you ask in my name, these were Jesus Christ's words. जब हम गलत रास्ते इख्तियार करते हैं अपनी दुआओं का जवाब लेने के लिए, When we go along the wrong path to get the answer to our prayers, तो क्या होता है कि हमारी दुआएं रुक जाती हैं। what happens is our prayers stop. हम कहते हैं कि इस चर्च में दुआ तो मेरी सुनी नहीं गई, ऐसा करती हूँ मैं किसी दूसरे चर्च चले जाते हैं। You'll think that my prayers aren't being answered in this church, so I'll go to a different church to get my prayers इस answered. पास्टर ने मेरी दुआ की है, उससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, चल मैं दूसरे पास्टर को टोर जानी है। Say that I've had this pastor pray for me and my prayers have not been answered. Let me try going to a different pastor and see if he will answer my prayers. हम अपनी दुआ पे और अपने खुदा पे नहीं बल्कि हम पास्टरों पे यकीन करना शुरू कर देते हैं। So we stop trusting on our Lord and Jesus. We start relying on pastors instead. और अपने चर्चेस को चेंज करना शुरू कर देते हैं। And we start to change our churches. हम कहते हैं कि नहीं यार, ए पास्टर को मैं क्या सी दुआ कर दे मैं ठीक हो जाऊं, नहीं हुई चल आज दूसरे पास्टर को चले जाने। So you'll think that, oh, I was sick and I asked this pastor for prayer to me and I didn't get healed, so I'll try going to a different pastor to receive healing. लेकिन कभी अपने ये देखा है कि किसी की दुआ से कुछ नहीं होता, सिर्फ खुदा और खुदा का रूह काम करता है।
you will see that it's not only prayer; it's through the Holy Spirit that your prayers will be answered. कुछ जगहों पर मैंने सुना है कि पास्टरों ने अपनी दुआ की कीमतें लगाई हुई हैं. I've heard in many places that pastors will pray and say it's their word. Yeah, money. For money. Okay. Yeah. वो कहते हैं कि अच्छा बीमारी की दवा है तो 10,000 लेके आओ. पाकिस्तान इंडिया की बात कर रही हूँ. इधर भी होता है. They will say, I will answer your prayers, just give me 10,000 rupees. मुझे किसी ने बताया कि वो किसी पास्टर के पास गई, उसका मैं नाम नहीं लूँगी, उनके कोई रिलेटिव, उसने मुझे हकीकत में बात बताई. पास्टर के घर पे गए, उन्होंने उसका दरवाज़ा नॉक किया. So someone that I know, they went to this pastor's house. और उस बच्चे को भेजा. बच्चे ने कहा जी बाहर ना कोई दुआ कराने आया है. And they sent their son, and he said that someone has come for prayer. उसने कहा किस मकसद के लिए दुआ कराने आया है. And they asked him what was the reason for the उसने prayer. कहा हमारे पास औलाद नहीं है, हम इसलिए दुआ कराने आए हैं. They said we don't have belief, so No we children. don't have children, so we came to pray for children. Yeah. उसने कहा ओके 50,000 लेके आओ तो फिर हम आपके लिए दुआ करेंगे. And they 50,000. said, and they said to bring 50,000, and then we will answer your prayers. जो पास्टर जो आजकल अपने आप को कहते हैं बहुत सारे लोग कि हम पास्टर हैं, उन्होंने अपनी दुआओं के ऐसे प्राइस रखे हैं, लेकिन हमारा खुदावंद यीशु मसीह ने लोगों को फ्री में दिया है. So pastors today will add a price to answer your prayers, but our Lord Jesus Christ will answer our prayers for free. इसीलिए हमें अपना राइट पासवर्ड लगाने की ज़रूरत है ताकि हमारी दुआएं खुदावंद तक पहुँचें. That's why we need to use our right password so our prayers reach our Lord. 3 बातों के बारे में मैंने बताया था कि आज हम सीखेंगे. Today I said we will learn about 3 different things. दुआ का जवाब. The answer to our prayers. जब समटाइम हमें दुआ का जवाब जो है ना स्टेट में आ जाता है. Sometimes we get our answer straight away. और दूसरी जो बात है हमें दुआ करके उसका इंतज़ार करने को भी कहा जाता है. And sometimes when you pray, you have to wait for your answer. और समटाइम हमारी दुआ का जवाब नहीं आता. And sometimes you don't get any answer for your prayer. जब खुदा को महसूस होता है कि हमें किसी चीज़ की स्टेट में ज़रूरत है, तो जब हम दुआ करते हैं राइट पासवर्ड के साथ तो हमारी दुआ कबूल होती है. God knows when you are praying for the right thing and when you need your answer. So you should wait and see what God gives you, when God gives you your answer. और आपकी दुआ का उसी वक्त जवाब आ जाता है. And at that time you will get your answer to your हमें prayer. कैसे दुआ करनी चाहिए आए देखें. यूहन्ना का पहला खत 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 20. फर्स्ट जॉन चैप्टर 3 वर्स 20 उसमें लिखा है क्योंकि खुदा हमारे दिल से बड़ा है और सब कुछ जानता है. If our science condemns us, we know that God is greater than our conscience and that He knows everything. लिखा है कि वो क्योंकि कलाम में लिखा है कि वो तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हें किन चीज़ों की ज़रूरत है. लिखा है कि खुदा सब कुछ जानता है, लेकिन वो ये चाहता है कि हम अपना राइट पासवर्ड लगाएं. हम इस पासवर्ड के आसपास ही रहेंगे, हम इस दायरे से बाहर नहीं जाएंगे. क्योंकि आप शायद कहें कि हर बात में पासवर्ड, क्योंकि हमारा पासवर्ड खुदावंद यीशु मसीह. लिखा है कि वो सब कुछ जानता है, लेकिन कलाम में लिखा है It says in the Bible that God knows all things and He knows when to give you your answer. और वो चाहता है कि वो जानता है और वो हमारी दुआओं का जवाब देता है, लेकिन कब? जब हम उससे राइट वे में मांगते हैं. And He knows when to give you your answer to your prayers, and He also knows what is the right way for you to ask of Him. एक खुदा के खादम के बारे में हम देखेंगे. 1 सैमुएल. We will now read 1 Samuel. Chapter 3 verse 19. Chapter 3 verse 19. ओके. इसमें लिखा है सैमुएल बड़ा होता गया और खुदावंद उसके साथ था और उसने उसकी बातों में से किसी को मट्टी में मिलने ना दिया.
19 sorry. As Samuel grew up, the Lord was with him and made everything that Samuel said come true. और बनी इसराइल ने उसे दान से बैरसबा तक जान लिया और सैमुअल खुदा का नबी मुकर्रर हुआ और खुदावन सैला में फिर जाहिर हुआ क्योंकि खुदावन ने अपने आप को सैला में सैमुअल पर अपने कलाम के जरिए जाहिर किया। हमने इसकी 19, 20 और 21 आयत पढ़ी है। So all the people of Israel, from one end of the country to the other, knew that Samuel was indeed a prophet of the Lord. The Lord continued to reveal himself to Shiloh, where he had appeared to Samuel and had spoken to him. And when Samuel spoke, all of Israel listened. हाँ, लिखा है कि जब सैमुअल उसके बचपन की बातें लिखी है कि वो बढ़ता गया, क्या था, खुदा उसकी किसी बात को मट्टी में मिलने नहीं देता था। As it says in the Bible, as Samuel grew up, the Lord did not leave him, and he helped him through all of his life. और वो उसकी सारी बातों को सुनता और उनको पूरा करता था। कौन? खुदा। The Lord listened to everything Samuel had to say, and he made everything come true. और लिखा है कि इस्राएल को पता चल गया कि ये खुदा का नबी है, प्रॉफिट। And the people then realized that this is the prophet of the Lord. खुदा के खादम ऐसे होते हैं। God's promises are like this. God's work. खुदा के खादम, खुदा के लोग इस पास ये। Okay, the Lord's people are like this. जैसे सैमुअल था, Like how Samuel is. कि खुदा उसकी बात को सुनता था क्योंकि वो खुदा के साथ साथ चलता था। Because he walked with the Lord. और खुदा उसकी दुआ को सुनता था। And the Lord listened to his prayer. क्योंकि वो अपना राइट पासवर्ड खुदा के साथ लगा के रखता था। Because he kept the right password for when he used और to talk उसका to God. जो रिलेशन था वो खुदा के साथ स्ट्रांग था। And he had a strong relationship with the Lord. हम जाएंगे, एक आपने सबने काना गलील में जो शादी थी उसके बारे में सुना होगा। All of you have heard about the wedding in Galilee. उस वक़्त खुदावंद की माँ ने यीशु मसीह से क्या कहा था? At that time, what did Jesus' mother say to Jesus? कि इनकी मैं ख़त्म हो गई है। That their wine has finished. तो खुदावंद यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया था? And what answer did Jesus give to them? उसने कहा मेरा वक्त नहीं आया। दैट्स मीन कि उसको इंतज़ार करने की ज़रूरत थी, जो दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। He said that my time has not come yet, which meant that he had to wait, which is one of the hardest things that people have to do. इंतज़ार, मेरे ख्याल में सबके लिए इंतज़ार करना, हम लोग बड़ी जल्दी बेसब्रे हो जाते हैं। Everyone needs to wait, but everyone becomes impatient. Impatient, yeah. कि हमें अभी ही चाहिए, इसी वक्त ही खुदा चाहिए। Because we want everything right now. खुदावंद हमसे मांगा है, तूने हमें अभी तक दिया क्यों नहीं है? We say that, Lord, we've asked you, why have you not given it to us yet? हमने सबसे पहली बात सीखी कि दुआ का फौरन जवाब मिल जाता है। We've seen that you can't get your answers to your prayers straight away. अभी दूसरी बात पे हम आए हैं कि हमें इंतजार करना है दुआ करके। So now we've come to the second point, which is that we have to wait for our prayers. क्योंकि कलाम में लिखा है कि हर चीज के पूरे होने का एक वक्त है। Because in the Bible it's written that there is a time for everything. लेकिन हम इंसानों में ये बात है कि हम इंतजार नहीं कर सकते। But the problem with humans is that we get impatient and we don't want to wait. जैसे मैंने पहले बताया, इस पास्टर से दुआ का जवाब नहीं मिला तो दूसरे के पास चले गए, दूसरे से जवाब नहीं मिला तो तीसरे के पास चले गए। Like I said earlier, people go to different pastors to get answers for their prayers. लेकिन हम खुद दुआ नहीं करते, कई दफ़ा हम खुद दुआ में झुकना पसंद नहीं करते। But we do not pray for ourselves and don't regularly pray for what we need to be answered. हम दुआ करवाना पसंद करते हैं पर दुआ करना पसंद नहीं करते। We like it when people pray for us, but we do not pray for ourselves. हम पादरियों को कहते हैं कि साढ़े लिए दुआ करो और खुद हम 5 मिनट भी दुआ के लिए नहीं बैठते। We ask a pastor to pray for us, but we do not sit down and pray for even 5 minutes. लेकिन अगर आप अपने लिए खुद से दुआ करना शुरू करेंगे, But if you pray for yourself, तो खुदा आपकी दुआओं का जवाब देगा। Lord will answer your prayers. लेकिन उस दुआ के जवाब के साथ आपको इंतजार करने की ज़रूरत है। But you need to wait for your answer. हमें ऐसा नहीं होना कि बस जल्दी जल्दी हमें दुआ का जवाब मिल जाए। We shouldn't be impatient and expect the answer straight away.
अयूब नबी, अयूब जॉब के जॉब, बारे या, में, ओके, जॉब जो था, वो अयूब जो था, उसको बहुत सारी मुश्किलात परेशानियां आई। Job went through a lot of hardships. उसकी सारा कुछ चला गया। He lost everything. उसके बच्चे मर गए, His children died. उसकी सारी दौलत जायदाद सारा कुछ चला गया। He lost all his land and money. लेकिन वो क्या करता था? वो खुदा से इंतज़ार करता रहा। आए हम देखें अयूब, जॉब चैप्टर 21 उसकी वर्स 4। वो भी बेसब्रा हुआ था थोड़ा, लेकिन क्यों हुआ था ये इस आयत में हम देखेंगे। उसने भी इंतज़ार किया बहुत देर, लेकिन इधर हम देखेंगे कि क्या हुआ। 21 जॉब 21 उसकी वर्स 4, 5 और 6 तक हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहले मैं वर्स 4 पढ़ूंगी, ओके। लेकिन मैं क्या, मेरी फरियाद इंसान से है, फिर मैं बेसब्री क्यों ना करूं। My quarrel is not with mortals. I have good reason to be impatient. मुझ पर गौर कर और मुतज्जब हो, और अपना हाथ अपने मुंह पर रखो। Look at me. Isn't that enough to make you stare in shocked silence? जब मैं याद करता हूं तो घबरा जाता हूं। When I think of what has happened to me, I am stunned and I tremble and shake. मेरा सारा जिस्म थर थरा उठता है और शरीर क्यों जीतते रहते हैं। ओके, इसमें लिखा है कि उसने कहा है कि वो उस वक्त उसके कुछ दोस्त उसके पास आए थे और उसको ये कहना चाह रहे थे कि तूने बहुत इंतज़ार कर लिया, अभी तू किस चीज़ का इंतज़ार कर रहा है। लेकिन उसने कहा कि मेरी फरियाद किससे है? इंसान से नहीं है, बल्कि मेरी फरियाद खुदा से। मैं क्यों बेसब्रा ना हूं, मैं क्यों इस चीज़ को ना बोलूं। So at this time, a lot of Job's friends and family came to him. They asked him, "Why have you waited so long?" And he said to them, "My wait is not with humans, but it is with my Lord." इसीलिए जब हम दुआ करते, अगर हम बेसब्रे भी हैं तो सिर्फ खुदा के आगे जाके ये ना कि बेसब्रे होकर इधर उधर जाना शुरू कर दे। We shouldn't lose faith and go here and there for our answer. हमें खुदा से जब दुआ की है, अयूब की तरह हमें उसका इंतज़ार करना है। When we pray to God, we should wait the way Job did. उसने खुदा के जवाब, उसने कहा मैं बेसब्रा क्यों ना हूँ। क्योंकि वो किससे मांग रहा है? किसी इंसान से नहीं मांग रहा, बल्कि खुदा से मांगता है। He said he won't use faith because he's not talking to humans, he is talking to our Lord. कई दफ़ा हम क्या करते हैं, हम खुदा की हजूरी में नहीं चलते, बल्कि खुदा की हजूरी से दूर जाते हैं। So we don't stay in the presence of the Lord, but we go away from the presence of the Lord. जब हम खुदा की हजूरी में चलते हैं, When we stay in the Lord's presence, जब हम दुआ करते हैं, when we pray, तो क्या होता है कि हमारे अंदर इंतज़ार होता है। what happens is that we get patience. जब हम खुदा की दूरी से दूर भागते हैं, When we run away from the Lord, फिर हमारे अंदर इंतज़ार नहीं होता। then we become impatient. जब हम खुदा के साथ रह के चलते हैं, When we walk with the Lord, तो हमारे अंदर इंतज़ार भी होता है और सब्र भी होता है, and we get patience from there, जैसे अयूब नबी ने किया था। just the way Job did. उसने क्या किया? इंतज़ार किया अच्छे वक्त का, He waited for the good time. और खुदा ने उसको क्या दिया? दुगना। क्यों दुगना दिया? क्योंकि उसने ये नहीं कहा कि मैं चलो ठीक है दूसरे महबूदों के पास चला जाऊं। Others gods. He said, I will get what I need and I will not go towards other gods. अब देखते हैं कि खुदा का नबी एलिया, एलिया, So now you will see Lord's prophet Elijah. उसको मर्दे खुदा कहा गया है, मैन ऑफ गॉड। He's said to be a man of God. क्यों कहा गया? उसने 3 दिन उसने दुआ की तो 3 साल पानी नहीं बरसा, They say this because he prayed and there was no rain for 3 years. और जब उसने उसके बाद 3 दुआ की तो मी बरसा। And after that, when he did pray, it did start to rain. जो खुदा के खादम होते हैं, जो मैन ऑफ गॉड होते हैं, So the people of God, man of God, वो एलिया की तरह होते हैं। they are like Elijah. उनकी दुआ जो होती है वो खुदा सुनता है और उसको पूरा करता है।
The Lord listens to their prayer and He answers their prayer. एलाइजा को पता था कि मैंने खुदा से दुआ की है और खुदा ने उस दुआ का उसको जवाब भी दिया। वाकई 3 साल, ये नहीं खुदा ने कहा चल ठीक है 1 साल बाद बारिश कर देता हूँ। खुदा ने भी, उसने भी इंतज़ार किया 3 साल तक के खुदा ने बारिश नहीं की। So even he prayed and the Lord waited as well alongside Elijah for the 3 years for when it did not rain. यहाँ पर एक मुझे बात बता, इस्राएल कौम जब मिस्र से निकली थी उनका सफ़र कितने दिन का था, किसको याद है? 40 दिन का। तो कितनी देर में बदल गया था? 40 सालों में। क्यों बदला था? 40 दिन और 40 साल। So it took them 40 days to get out of slavery and they stayed out of slavery for 40 years. No, it's No. a journey. Oh, journey was- मिस्र टू इज़राइल The journey was 4 years. थे। उसने क्या किया, वो 40 दिन की जो उनका सफ़र था, उनकी जर्नी थी, So the journey of 40 days, वो 40 years में 40 सालों में तब्दील हो गई। it was completed in 40 years क्यों? क्योंकि इस्राएल कौम की नाफरमानी की वजह से। because of the Israeli people were unfaithful. वो जब मिस्र से निकले थे तो उन्होंने भी उस खुदावंद की बातों को जो देखा उसको पूरे होने का इंतज़ार नहीं किया। Even they did not wait for God to finish and for God to answer their prayers. जब हम भी इसी तरह करते हैं, हम किसी चीज़ के लिए इंतज़ार नहीं करते, बेसब्रे होते हैं, तो हमारा इंतज़ार का जो वक्त है वो लंबा हो जाता है। So when we become impatient and we want everything straight away, our time to wait becomes longer. और क्या होता है जब हम उस वक्त हम बेसब्रे होकर इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। And then we start looking here and there for our answers. इसी तरह जो थे ना बनी इज़राइल जो थे, जब इस मुल्क मिस्र से निकल के आए थे, The people of Israel, when they left slavery, उन्होंने रास्ते में भी अपने बहुत से नए खुदा भी बनाए थे। and on the way they made lots of new different gods. उन्होंने कहा ये हमारा खुदा है जो हमें मुल्क मिस्र से निकाल के लाया। They said, no, this is our God that took us out of slavery. वो उस खुदा को, जो जिंदा खुदा को मानने वाले थे, उसकी उन चीज़ों को भूल के अपने नए रास्ते उन्होंने इख्तियार किए थे। They forgot the ways of the true God and they started to believe false idols. इवन कई दफ़ा खुदा ने चाहा भी कि उस कौम को बियाबान में ही ख़त्म कर दे। And even if Lord wanted to, He could have stopped them right there and then. In the desert, yeah. लेकिन फिर भी मूसा खुदा से कहता था कि ऐसा ना कर। Even then Moses said, please don't do this. खुदा जो है वो चाहता है कि जब हम दुआ करते हैं हम उसका इंतज़ार करें अपना राइट पासवर्ड लगा के। The Lord wants us to pray and wait and also pray with the right password. और जब हम खुदावंद की हजूरी में चलते हैं And when we walk in the presence of the Lord, तो खुदा हमारी जो है वो दुआओं को भी सुनता और उनका वक्त पे जवाब भी देता है। God listens to our prayers and He will answer our prayers as well. और इसके साथ हम देखेंगे यूसाया नबी का सहीफ़ा इज़ाया So now we'll read Isaiah चैप्टर 40 वर्स 30 chapter 40 and verse 30 एंड 31 हम दोनों पढ़ेंगे, सॉरी 30 and 31. इज़ाया चैप्टर 40 वर्स 30 एंड 31। जवान भी थक जाएंगे और मांदा होंगे और सूरमा बिल्कुल गिर पड़ेंगे। Even those who are young grow weak. Young people can fall exhausted. लेकिन खुदावंद का इंतज़ार करने वाले असर नो हासिल करेंगे। वो उकाबों की मानिद बाल ऊपर से उड़ेंगे। वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे। वो चलेंगे और मांदा ना होंगे। But those who trust in the Lord for help will find their strength renewed. They will rise on wings like eagles. They will run and not get weary. They will walk and not grow weak. लिखा है कि जवान भी थकेंगे। It says here, even the young will get tired. क्योंकि कई दफ़ा हम कहते हैं कि लो जी जवान जो है ना कभी थकते नहीं है। Because people say, oh, the young people don't get tired. यहाँ उन लोगों के बारे में बात की गई है जो खुदावंद के साथ नहीं चलते। Here they are talking about the people that do not walk with the Lord. यहाँ उनके बारे में बात की गई है जो जंग करते हैं। Or they're talking about the people that fight wars. Yeah. कि वो भी थक जाएंगे, लेकिन कौन नहीं थकेगा? जो खुदावंद का इंतज़ार करते हैं। They say even those will grow tired, but the people
that have faith in the Lord will not grow tired. लिखा है कि वो उनको उकाबों जैसा जोर देगा, ईगल्स। He said it will give you wings like an eagle. वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे, They will fly and not get tired. वो चलेंगे और कभी मांदा ना पड़ेंगे। They will walk and not grow weak. क्योंकि जब हम खुदावंद में चलते हैं, ये दुख तकलीफ मुसीबतों में से भी हम गुजरते हैं, तो खुदा हमें तैयार करता है। Even when we walk with the Lord, even though we go through hardships, we need to stay with the Lord. तो लिखा है कि वो हमें उकाबों जैसे जोर देता है। And it says He gives us, renews our strength. और वो जब हमें उकाबों जैसे जोर देता है तो वो हमारी दुआओं को सुनता है, लेकिन वो हमें टेस्ट करता है कि हम उसकी दुआ के साथ उसका इंतज़ार करते हैं कि नहीं करते। And with this strength, He sees if we will wait for His answer to our prayers. जो खुदा है वो हमें कई दफ़ा हम कहते हैं कि शायद मुश्किल खुदा की तरफ से आई है, Sometimes we think that the hardships have came from the Lord, लेकिन खुदा सिर्फ वो हमारा एक इम्तिहान लेता है, but God is only testing us. Yeah. कि हम खुदावंद के साथ कितने स्ट्रॉन्ग हैं। How strong is our faith हम with the किसी Lord? मुश्किल के वक्त पर आने पर खुदावंद को छोड़ तो नहीं दिया, So when we go through hardships, we don't leave our Lord. लेकिन जब हम खुदावंद के साथ उसकी मर्जी को पूरा करते हुए चलते हैं, But when we walk with the Lord and go by His wish, तो खुदा हमारी दुआओं को सुनता और हमें जवाब देता है। God listens to our prayers and gives us the answer. एक हवाला हम और देखेंगे, 1 जॉन We read one more verse. 1 जॉन चैप्टर 5 उसकी 14 and 15 वर्स। 1 जॉन चैप्टर 5 उसकी 14 and 15 वर्स। और हमें जो उसके सामने दलेरी है, उसका सबब ये है कि अगर उसकी मर्जी के मुआफिक कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। 14 We have courage in God's presence because we are sure that He hears us if we ask Him for anything that is according to His will. और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वो पाया है। He hears us whenever we ask Him, and since we know this is true, we also know that He gives us what we ask from Him. इधर लिखा है कि जो कुछ हमने किससे मांगना है, खुदावंद की मर्जी से। So here it says, anything that we ask is according to God's wishes. लिखा है जब हम उससे मांगते हैं तो वो सुनता है। It says when we ask Him, He will give us an answer. और लिखा है कि जब हम मांगते हैं तो हम पाते भी हैं। It says when we ask Him, we shall receive as well. और यही खुदावंद का, यही आज की बात सीखने की है कि हमें दुआ करनी है, उसका इंतजार करना है। So today we are learning that when we pray, we need to wait for जब हम the Lord. इंतजार नहीं करते, When we don't wait, कलाम में लिखा है कि खुदा बहुत कम बोलता है, the Lord does not speak to us. और जब वो बोलता है तो उसको पूरा करता है। And when He does, He fulfills your जब हम इंतजार नहीं करते When we do not wait, तो खुदावंद का जवाब ना में भी आ जाता है। God's answer becomes a no. as खुदावंद well. की एक दफा भी ना है और खुदावंद की 1000 दफा भी ना है। The Lord can say no once and 1,000 times as well. जब हम खुदावंद के साथ चलते हैं, हम अपनी दुआ करके उसका इंतजार करते हैं, हम इधर उधर के रास्तों पर नहीं चलते, When we walk with the Lord and we pray and we wait for His answer and do not stray away from Him, तो खुदा जो है वो हमारी दुआओं का जवाब देता है। the Lord will answer our prayers. और वो चाहता है कि हम उसकी हजूरी में चले, उसकी हजूरी से दूर ना जाए। He wants us to stay in His presence and don't stray away from His presence. जब हम खुदावंद के साथ चलते हैं When we walk with the Lord, तो वो हमारी दुआ को सुनता है। He listens to our prayers. खुदा जो है वो क्रिएटर है, वो उसने अपनी एक दुनिया बनाई है। The Lord is our creator. He has made this world. यहाँ पर पता नहीं, मुझे नहीं पता पंजाबी में उसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, लेकिन जब ये इंग्लिश में एक्सप्लेन करेगा आपको समझ आ जाएगी। कहते हैं कि जो खालिक है ना, वो मखलूक की सुनता है। So the creation listens to the creator. ये लेकिन जो
क्रिएशन है, जो मखलूक है, वो मखलूक की नहीं सुनती. But creation can decide not to listen to another creation. इसका मतलब है कि खुदा जो है वो हमारी दुआ को सुनता है. This means that God listens to our prayers. एक इंसान दूसरे इंसान की दुआ को सुनकर उसका जवाब नहीं दे सकता. This means that another person cannot listen to anyone else's prayer and क्योंकि give them the answer. क्योंकि हम खुदा की बनाई हुई मखलूक हैं. Because we are the Lord's creation. और जो हमारा क्रिएटर है, जो हमारा खालिक है, And our Creator, वो हमारी सुनता है. He listens to us. अगर हम किसी इंसान से मांगेंगे, वो आप मुझसे कुछ मांगेंगे या पास्टर अशोक से या बदर शमशेर से किसी से कुछ मांगेंगे, शायद हम आपकी कोई छोटी मोटी दुनियावी ज़रूरत को पूरा कर सके. So if you ask anybody anything, we can fulfill their wishes only on a short term or small things that they can do. लेकिन जो हमारा बनाने वाला है, But our Creator, वो हमारी दुआओं को सुनता और हमें जवाब देता है. He listens to our prayers and answers them. अगर हमारी जिंदगियों में इस चीज की कमी है कि हम दुआ करते हैं और इंतजार नहीं करते, तो आज से खुदावंद के कलाम से हमने ये सीखा है कि हमें मांगना है और उसका इंतजार करना है. So if you have this issue that you pray and you become impatient, you should listen to today's message and learn that once you pray, you have to wait for God's answer. हमें अपना राइट पासवर्ड लगाना है. We need to use our right password. इधर लिखा है, अभी हमने पढ़ा है We have now read, कि हमें उसकी मर्जी के मुताबिक मांगना है. we have to ask according to His will. अगर हम उसकी मर्जी के मुताबिक नहीं मांगते, If we do not ask according to His will, तो हमें नहीं मिलता. then we shall not receive it. जब हमने मांगा है तो हमें इतबार भी करना है, खुदावंद पर ईमान रखना है कि वो हमें देगा. When we pray, we have to believe in our Lord that He will give it to us. लिखा है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मेरे बाप से मांगोगे, It says, whatever you ask in my name, तुम्हें मिलेगा. you shall receive it. है तुम मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, If you ask, you shall receive, और वो हमें देगा. and He will give to us. अगर हम मांगेंगे नहीं तो कई दफा हमारे बच्चे भी हमसे कुछ चीज मांगते हैं तो हम उनको मुहैया करते हैं. So even now, children might ask their parents for things. आए हम अपनी आंखों को बंद करें और अपने पैरों पर खड़े हो जाएं. I'll ask everyone to stand up on their feet and pray. और अगर आज हमारी जिंदगियों में इस चीज़ की कमी है कि हम इंतज़ार नहीं करते और हमें कई दफ़ा खुदा का जवाब जो है वो ना में मिलता है, खामोशी में मिलता है, तो आज हम उन बंधनों को खुदावंद के नाम से तोड़ देंगे ताकि हमारी ज़िंदगी के अंदर वो चीज़ पैदा हो कि हम दुआ करें और उसका इंतज़ार करें. So if we have this issue of praying and becoming impatient, we should all pray that we should be patient and wait for the Lord to fulfill your wish. अपनी आंखों को बंद करें और अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएं. Everyone close your eyes and raise your hands. और आज खुदावंद जो है वो उन बंद दरवाज़ों को खोलना चाहता है जो आज आपकी ज़िंदगियों में बंद हैं. And today, Lord wants to open the closed doors in your life. और वो आज एक एक की ज़िंदगी को छूना चाहता है. And He wants to pick everyone today. और वो चाहता है कि अगर हमारी ज़िंदगी में कमज़ोरी है, हम दुआ करते हैं या हम दुआ के लिए इधर उधर भागते हैं, तो हम उन आदतों से दूर हो जाए. हम खुदावंद में आए, उसकी मर्जी से भागे. If we go here and there for the answers to our prayer, the Lord wants us to come to Him. खुदा चाहता है कि हम उसकी मर्जी के मुताबिक मांगे. The Lord wants us to ask according to His will. वो चाहता है कि हम राइट पासवर्ड इस्तेमाल करें He wants us to use the right password. ताकि हमारी दुआओं के लिए आसमान खुल जाए. So from our prayers, the heavens will open. खुदा चाहता है कि आज हम अपने दिलों को उसके सामने खोल दें. God wants you to open your heart today. वो चाहता है कि उससे मांगे, He wants us to ask Him कि वो हमें दुआ करना सिखाए, to teach us to pray. वो हमें दुआ का जवाब का इंतजार करना सिखाए, Teach us to wait for the answer to our ताकि prayer. हम खुदावंद की मर्जी से मांगे, So we can ask according to His will. ताकि हम उसकी मर्जी पर चले, So we can walk with Him according to His will. ताकि हम खुदावंद के ऐसे बंदे बन जाएं कि खुदावंद हमारी बातों को भी मिट्टी में मिलने ना दे. And so we can become the type of people where our prayers हम will always be answered. सिर्फ अपने खुदा से मांगे, We should only ask our Lord. ना कि किसी पास्टर से या चर्चिस तब्दील करने से, We should not ask any pastor or any church, बल्कि अपने खुदा से मांगे. but only our Lord.
वो हमारी दुआओं को सुनकर हमें जवाब देता है। He will listen to our prayers and give the answer. खुदावंद आज यहाँ मौजूद है The Lord is with us today. और वो चाहता है कि हम उससे मांगे। मशर आज वो आपके सारे रुके काम पूरे हो जाएंगे जो आपकी जिंदगी में आज तक ऐसे काम नहीं हुए। आज हमारा खुदावंद यहाँ मौजूद है, उसका दम यहाँ पर लगा हुआ है। वो हमारे खाली दामनों को आज भरना चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि हम यहाँ से खाली हाथ जाएं। पानी पानी पे जी जैसे जुम्बश तेरी, पानी पानी पे जी जैसे जुम्बश तेरी, अंबिया पर तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद कि तू यहाँ मौजूद है। तू आज है खुदावंद, यीशु के नाम में है खुदावंद वो सारी बीमारियां दूर हो जाएं। यीशु के नाम में वो सारे पत्थर टूट जाएं। यीशु के नाम में है खुदावंद, अगर किसी के कारोबार में, बिजनेस में, किसी के काम में किसी किस्म की भी प्रॉब्लम है, यीशु के नाम में जाते रहे खुदावंद, क्योंकि तू यहाँ मौजूद है और तू हमारी दुआओं को सुनने वाला खुदा है। तू हमें कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि ऐ खुदावंद तूने हमें अपने खून से खरीद लिया है। और तू कहता है कि तुम अपने नहीं क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो। वही ऐ खुदावंद तूने हमारी शक्तियाँ अपनी हथेली पर छेद रखी है खुदावंद। छूले हर आज तू एक एक की जिंदगी को छुए खुदावंद, एक एक की जिंदगी में काम कर रहे खुदावंद। मैं तेरे आगे दुआ करती हूँ खुदावंद, तेरी बंदी होने के नाते है खुदावंद, क्योंकि तू कहता है कि ईमानदार की दुआ से बहुत कुछ हो जाता है। जब कलीसिया ऐ खुदावंद तेरे सामने दुआ करती है तो ऐ खुदावंद बेड़ियां टूट जाती हैं। ऐ खुदावंद वो दरवाजे खुल जाते हैं यीशु के नाम में। ऐ खुदावंद जो किसी वजह से बंद हैं, ऐ खुदावंद मैं तेरे सामने दुआ करती हूँ खुदावंद, तू हमारी दुआओं को सुनने वाला बाप है। तू हमें कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि ऐ खुदावंद तूने हमें अपने खून से खरीद लिया है। ऐ खुदावंद हम तेरी मर्जी के मुताबिक सभी अपनी कमजोरियां, हम अपनी कमजोरियों को ऐ खुदावंद आज तेरे सामने रखते हैं। ऐ खुदावंद हमारे में आज जो कमजोरी है यीशु के नाम में वो दूर हो जाए। अपनी कमजोरियां हमारी कमजोरियों को दूर कर रहे खुदावंद, तू हमें अपने अंदर बस करते हैं खुदावंद। अपनी शहज़ोरियां खुदावंद हमें तेरी ताकत चाहिए, हमारी कमजोरियां दूर हो जाए। ऐ खुदावंद आज अगर हमारे अंदर ये कमजोरी है कि हम तेरी दुआ करके इंतजार नहीं करते, तो आज हमें इंतजार करना सिखा। बल्कि ऐ खुदावंद आज वो सारे बंधन तेरे नाम में टूट जाए, यीशु के नाम में वो सारे बंधन टूट जाए। ऐ खुदावंद जो किसी भी इस कलीसिया में इस वक्त जितने लोग यहाँ मौजूद हैं खुदावंद, जो भी उनकी जिंदगी में कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, यीशु के नाम में ऐ खुदावंद वो बंधन आज खुल जाए, टूट जाए। ऐ खुदावंद तो तेरा नाम हमारी जिंदगियों में जलाल पाए। खुदावंद आज तूने हमारी जिंदगियों को भर दिया है, तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद तेरा आज हर जिंदगी को खुदावंद यीशु मसीह ने छू लिया है, क्योंकि हमारा ईमान है कि आज हमने उससे जो मांगा है उसने हमने दे दिया। आसमान और ज़मीन के खालिक को मालिक है बाप, मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरे नाम की तमजीद करती हूँ बाप। ऐ खुदावंद हमारा ईमान है कि खुदावंद आज वो सारे बंधन टूट चुके हैं खुदावंद, जो किसी की भी ज़िंदगी में किसी तरह से भी बंधे हुए थे, क्योंकि खुदावंद हमने एक दिल एक जान होकर खुदावंद तेरे सामने दुआ की है।
ऐ खुदावंद अगर किसी के जिस्म में कोई बीमारी थी वो यीशु के नाम से जाती रही, किसी के कारोबार में वो प्रॉब्लम था, किसी की जॉब का भी कोई प्रॉब्लम था, खुदावंद वो तेरे नाम में जाता रहा। बल्कि ऐ खुदावंद तूने अच्छे दरवाज़ों को हमारे लिए खोल दिया है। मैं तेरे शुक्र करती हूँ क्योंकि ऐ खुदावंद तेरे नाम से जो दरवाजे खुल जाते हैं खुदावंद वो दरवाजे कभी बंद नहीं होते। मैं तेरे शुक्र करती हूँ ऐ खुदावंद उन खुले हुए दरवाज़ों के लिए। ऐ खुदावंद तुम्हारी ज़िंदगियों में काम कर, ऐ खुदावंद तू हमें अपने लिए इस्तेमाल कर, ताकि ऐ खुदावंद जब तक हम इस दुनिया में रहें ऐ खुदावंद हम अपनी ज़िंदगियों से तेरे नाम को जलाल देते रहें। ऐ खुदावंद जितने लोग तेरे सामने सरनगू हैं इस वक्त, ऐ खुदावंद एक एक को बरकत दे, एक एक को ऐ खुदावंद तो अपने हाथ के नीचे रख, एक एक की तू दुआओं को सुन। और ऐ खुदावंद तूने आज हमारी दुआओं का हमें जवाब दे दिया है, जिसके लिए मैं तेरा शुक्र करती हूँ। क्योंकि तेरे कलाम में से पढ़ा है कि जब तुम दुआ मांगोगे तो पाओगे, शक ना करो। ऐ खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे ईमान, अपने ईमान के लिए खुदावंद जो तूने हमें दिया है। तेरा शुक्र है खुदावंद आज के कलाम के लिए खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। इससे खुदावंद तूने हमारी ज़िंदगियों में तब्दीली पैदा की है, जिसके लिए मैं तेरे शुक्रगुजार हूँ। जितने लोग तेरे सामने मौजूद हैं ऐ खुदावंद एक एक के लिए तुझसे बरकत चाहते हैं। मांगते तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। थैंक यू।